واقعہ حضرت آدم علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ اسلامی تاریخ کا آغاز ہے اور قرآن میں اس کا تذکرہ تفصیل سے کیا گیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام انسانیت کے پہلے نبی اور پہلا انسان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا اور انہیں اپنی خلقت کا ایک عظیم شاہکار بنایا۔ یہ واقعہ نہ صرف تخلیق انسانیت کا قصہ ہے بلکہ اس میں انسان کی فطرت، علم اور آزمائش کا بھی ذکر ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ زمین پر ایک خلیفہ، جانشین بنانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ کیا اب زمین پر ایسے کو خلیفہ بنا رہے ہیں جو وہاں فساد کرے گا اور خون بہائے گا، حالانکہ ہم تیری تعریف کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا اور ان میں اپنی روح پھونکی کی۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو نہایت حسین و جمیل بنایا اور انہیں علم عطا فرمایا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم نے آدم کو پیدا کیا، پھر ہم نے اس میں اپنی روح سے پھونکا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اشیاء کے نام سکھائے اور ان کا علم فرشتوں سے زیادہ تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھائے تو فرشتوں سے کہا کہ اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتے عاجز آ گئے اور کہا، پاک ہے تو ہمیں صرف وہی علم ہے جو تو نے ہمیں دیا ہے، بے شک تو ہی علم والا، حکمت والا ہے۔ فرشتوں کا سجدہ اور ابلیس کی نافرمانی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ تمام فرشتے اللہ کے حکم کی تعمیل میں حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ ریز ہو گئے سوائے ابلیس کے۔ ابلیس جنات میں سے تھا اور اس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی۔ ابلیس نے تکبر کیا اور کہا، میں آدم کو سجدہ نہیں کروں گا کیونکہ میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں اور وہ مٹی سے۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو اس نافرمانی کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے اپنی رحمت سے دور کر دیا اور اسے شیطان کے نام سے پکارا جانے لگا۔ ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی اور وعدہ کیا کہ وہ انسانوں کو بہکائے گا اور انہیں گمراہ کرے گا تاکہ وہ بھی اللہ کی نافرمانی کریں۔ حضرت آدم علیہ السلام کا جنت میں قیام۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام کو جنت میں رہنے کی اجازت دی اور فرمایا کہ جنت میں رہو اور جو چاہو کھاؤ پیو، لیکن اس ایک درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ ابلیس جو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام سے حسد کرتا تھا، اس نے ان دونوں کو بہکانے کی کوشش کی۔ اس نے انہیں وسوسہ ڈالا کہ اگر وہ اس درخت کا پھل کھا لیں گے تو وہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہ سکیں گے اور فرشتوں کی مانند ہو جائیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر اس درخت کا پھل کھا لیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا زمین پر نزول۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت سے نکال کر زمین پر بھیج دیا۔ یہ ایک آزمائش تھی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بتایا کہ وہ اور ان کی اولاد زمین پر ایک خاص مدت تک رہیں گے اور پھر انہیں اپنے اعمال کے مطابق آخرت میں جزا سزا ملے گی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اور حضرت حوا علیہ السلام کو زمین پر بھیجنے کے بعد ان کی توبہ قبول کی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے گناہ کا اعتراف کیا اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پھر آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھے تو اللہ نے اس پر مہربانی کی، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ حضرت آدم کا علم اور ان کی اولاد۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر بھیجا تاکہ وہ انسانوں کے لیے رہنمائی کریں اور انہیں اللہ کی عبادت کی دعوت دیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی اولاد دنیا میں پھیل گئی اور نسل انسانی کا آغاز ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا تھا
और उनकी औलाद को भी इल्म सिखाया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों और बेटियों को दीन की तालीम दी और उन्हें अल्लाह की इबादत का तरीक़ा सिखाया। हज़रत आदम और उनके बेटों का किस्सा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटे काबील और हाबील का वाक़या कुरान करीम में मौजूद है। काबील और हाबील के दरमियान इख्तिलाफ पैदा हुआ और काबील ने अपने भाई हाबील को हसद की बना पर कत्ल कर दिया। ये इंसानियत का पहला कत्ल था और काबील इस जुल्म की वजह से नादिम हुआ। अल्लाह ताला ने काबील को सिखाया कि मुर्दा जिस्म को किस तरह दफन किया जाए। एक कौवे ने काबील को ये सबक दिया और काबील ने अपने भाई हाबील को दफन किया। ये वाक़या इंसानियत के लिए एक दर्स था कि हसद और बुग़्ज़ कितनी तबाही ला सकता है और कत्ल जैसे बड़े गुनाह का अंजाम किया होता है। हज़रत आदम और परिंदों को जिंदा करने का वाक़या। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हवा अलैहिस्सलाम को जन्नत से ज़मीन पर भेजा गया तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ज़मीन पर ज़िंदगी गुजारने के तमाम पहलुओं की तालीम दी। एक दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दरख्वास्त की कि वो उन्हें कुछ मोजिज़ात दिखाएं ताकि उनकी ईमान की मजबूती और अल्लाह की कुदरत का कामिल यकीन हो। परिंदों का मुर्दा होना। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दरख्वास्त को कबूल किया और उन्हें एक मोजिज़ा दिखाने का फैसला किया। अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो कुछ मुर्दा परिंदे लेकर आएं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इस हुक्म पर अमल करते हुए मुख्तलिफ परिंदे जमा किए जो मुख्तलिफ हालतों में मुर्दा थे। ये परिंदे मुख्तलिफ रंगों और अक़साम के थे जिन्हें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने पास जमा किया। परिंदों को जिंदा करने का मौजिज़ा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक उन मुर्दा परिंदों को जिंदा करने की कोशिश की। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ये मौजिज़ा दिखाया कि वो उन मुर्दा परिंदों को जिंदा कर सके। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने हाथों से इन परिंदों पर फूंका और दुआ की और अल्लाह के हुक्म से वो मुर्दा परिंदे जिंदगी के आसार दिखाने लगे। ये मौजिज़ा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के लिए एक अजीम निशानी था कि अल्लाह की कुदरत हर चीज़ पर हावी है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और शैतान का दोबारा हमला। रवायत के मुताबिक शैतान ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर भी बहकाने की कोशिश की, लेकिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अब पहले से ज़्यादा मोहतात हो चुके थे। वो शैतान के हमलों से बचने के लिए हमेशा अल्लाह की याद में मशगूल रहते थे और शैतान की चालों से महफूज रहते थे। इस वाक़ये से हमें यह सबक मिलता है कि शैतान हमेशा इंसान को बहकाने की कोशिश करता है, लेकिन ईमान मजबूत हो तो उसकी चालें नाकाम हो जाती हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और जंगल के जानवरों का वाक़या। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हवा अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाल कर ज़मीन पर भेजा गया तो उनके सामने एक नई दुनिया थी जिसमें जंगल, जंगली जानवर और मुख्तलिफ किस्म की मखलूक़ात शामिल थीं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इस नए माहौल में ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूरी इक़दामात करने शुरू किए, जिनमें जंगली जानवरों से मुकाबला करना भी शामिल था। जानवरों का हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से मिलना। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने माहौल को समझने के लिए जंगल में जाना शुरू किया। जब वो जंगल में गए तो उन्होंने मुख्तलिफ किस्म के जंगली जानवरों को देखा, जिनमें शेर, भेड़िया, हाथी और दीगर मखलूक़ात शामिल थीं। उन जानवरों को देखकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने महसूस किया कि ये जानवर भी अल्लाह की मखलूक़ात हैं और उनके साथ हसन सलूक की ज़रूरत है। जानवरों की तालीम। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जंगल के जानवरों के साथ सलूक करने के उसूल मुरतब किए। वो जानवरों को खौफज़दा करने और उन्हें नुकसान पहुंचाने की बजाय उन्हें मोहब्बत और एहतराम के साथ देखते थे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने तजुर्बात से सीखा कि जानवरों की ज़रूरतें भी अहम हैं और उन्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहिए। जानवरों की मदद करना। एक दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने देखा कि एक जानवर जो कि एक गधा था शदीद तकलीफ में था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन इसकी मदद करने का फ़ैसला किया
और जानवर को आराम देने की कोशिश की। उन्होंने जानवर को पानी दिया और उसकी हालत बेहतर बनाने की कोशिश की। ये वाक़या हमें ये सिखाता है कि बेज़ुबान मखलूक़ात के साथ भी हसन सलूक करना ज़रूरी है और उन्हें मदद फराहम करनी चाहिए। अल्लाह की हिदायत। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ये सिखाया कि जंगल में रहने वाले जानवर भी अल्लाह की मखलूक हैं और उनके साथ हसन सलूक करना एक अहम जिम्मेदारी है। अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हिदायत दी कि जानवरों के साथ जुल्म और ज़्यादती न करें, बल्कि उन्हें सही तरीके से पालने और उनकी ज़रूरियात पूरी करने की कोशिश करें। हज़रत आदम और कुत्ते का वाक़या। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ज़मीन पर भेजा तो उन्होंने अपने नए माहौल में ज़िंदगी के तमाम पहलुओं को समझना शुरू किया। एक दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हवा अलैहिस्सलाम ने देखा कि एक कुत्ता एक चपरासी की तरह अकेला घूम रहा है और लोगों के साथ नहीं मिलता। इस कुत्ते की हालत को देखकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की कि इसे किसी तरह की हमदर्दी और मोहब्बत मिले। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दुआ के बाद अल्लाह ताला ने कुत्ते की हालत में तब्दीली की और उसके ज़रिए इंसानों को सिखाया कि बेज़ुबान मखलूक भी मोहब्बत और हमदर्दी की मुस्तहिक है। इस वाक़ये ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद को ये सबक दिया कि अल्लाह की मखलूक़ात के साथ हसन सलूक और रहम दिली का बर्ताव ज़रूरी है। हज़रत आदम का पहला ख्वाब देखना। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ख्वाब के ज़रिए बाज़ अहम बातों का इल्म दिया था। एक रवायत के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने पहली बार ख्वाब देखा जिसमें अल्लाह ने उन्हें मुस्तक़बिल में आने वाले पैगंबरों और उनके फ़राइज़ की झलक दिखाई। इस ख्वाब ने उन्हें इस बात का शऊर दिया कि उनकी औलाद में से नबी और रसूल आएंगे जो इंसानियत की रहनुमाई करेंगे। ये वाक़या इस बात की निशानदेही करता है कि ख्वाब बाज़ औक़ात नबुव्वत की पेशीन गोइयों और अहम हिदायत का ज़रिया बन सकते हैं। हज़रत आदम और मौत के फ़रिश्ते का वाक़या। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की उम्र का आखिरी हिस्सा करीब आया तो अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मौत के फ़रिश्ते हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम के आने की खबर दी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को देखा और उनसे पूछा कि वो क्यों आए हैं। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने बताया कि वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज़ करने के लिए आए हैं क्योंकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की उम्र का इख्तिताम करीब है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम से सवाल किया कि क्या उन्हें मौत की हकीकत के बारे में कुछ बताया जा सकता है। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मौत की हकीकत और उसकी अहमियत के बारे में वज़ाहत की। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी मौत के करीब आने का सुनकर दिल बर्दाश्ता हुए, मगर हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने उन्हें तसल्ली दी कि ये अल्लाह का हुक्म है और मौत एक ज़रूरी अमल है जिससे हर इंसान को गुजरना है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का इल्म का अता होना। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इल्म सिखाया और उन्हें तमाम मखलूक़ात के नाम बताए। फरिश्तों के सामने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का इल्म ज़ाहिर किया गया ताकि उनकी अज़मत वाज़े हो। ये वाक़या इस बात की निशानदेही करता है कि इंसान को इल्म की वजह से अल्लाह ने फ़ज़ीलत दी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हवा अलैहिस्सलाम ने शैतान के बहकावे में आकर दरख्त का फल खा लिया तो उन्होंने अपनी गलती का एहसास किया और फ़ौरन अल्लाह ताला से मुआफ़ी मांगी। अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल की और उन्हें हिदायत दी कि ज़मीन पर अपनी ज़िंदगी गुजारी और अपनी औलाद को अल्लाह की तरफ बुलाएं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का ज़मीन पर पहला घर बनाना। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब ज़मीन पर भेजे गए तो उन्हें और हज़रत हवा अलैहिस्सलाम को एक नया आगाज़ करना पड़ा। रवायत के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने ज़मीन पर एक घर बनाया और अपनी ज़िंदगी को तरतीब दिया। ये ज़मीन पर इंसानियत की पहली बस्ती थी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने खेती बाड़ी की और अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए मेहनत की। इस तरह इंसानों को दुनिया में बका और मेहनत की अहमियत का दर्स मिला।
حضرت آدم علیہ السلام کا صفا و مروہ پر قیام۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کا زمین پر بچھڑ جانا ایک اہم واقعہ ہے۔ اسلامی روایات کے مطابق جب دونوں زمین پر آئے تو وہ ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے طویل عرصے تک حضرت حوا علیہ السلام کو تلاش کیا۔ بالآخر اللہ کے حکم سے دونوں کا ملاپ صفا اور مروہ کے درمیان ہوا، جو آج حج اور عمرہ کے مناسک کا حصہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا اللہ کے ساتھ پہلا وعدہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں ایک آزمائش کے طور پر بھیجا، لیکن جب انہوں نے درخت کا پھل کھا لیا تو ان کی نافرمانی کے نتیجے میں اللہ نے انہیں زمین پر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے وعدہ لیا کہ وہ اپنی اولاد کو اللہ کی عبادت سکھائیں گے اور انہیں اللہ کی فرمانبرداری کی تلقین کریں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے یہ وعدہ پورا کیا اور اپنی اولاد کو دین کی تعلیم دی۔ حضرت آدم علیہ السلام اور کعبہ کی تعمیر۔ روایت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے زمین پر کعبہ کی بنیاد رکھی۔ کعبہ کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے ہوئی تھی اور حضرت آدم علیہ السلام کے ہاتھوں اس مقدس گھر کی بنیاد رکھی گئی، جہاں بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر مکمل کی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا کا واقعہ۔ روایت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر اترنے کے بعد طویل دعا کی کہ اللہ تعالیٰ انہیں اور ان کی اولاد کو ہدایت دے اور دنیا کے فتنوں سے محفوظ رکھے۔ یہ دعا قرآن میں بھی مذکور ہے، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ یہ دعا انسان کے لیے ایک درس ہے کہ مشکل وقت میں ہمیشہ اللہ سے مدد طلب کرنی چاہیے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا زمین پر عبادت کی شروعات۔ جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آئے تو انہوں نے اللہ کی عبادت کا آغاز کیا اور روزانہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں وقت گزارتے تھے۔ روایت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے زمین پر نماز ادا کی اور اللہ سے اپنی توبہ کی قبولیت کے لیے دعائیں مانگی۔ انہوں نے اپنی اولاد کو بھی عبادت کی تعلیم دی اور انہیں اللہ کا شکر گزار بننے کی نصیحت کی۔ یہ واقعہ عبادت کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے اور یہ کہ زمین پر انسان کا مقصد اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا جنت کی یاد میں افسردہ ہونا۔ روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پر اترے تو انہیں جنت کی زندگی کی یاد ستانے لگی۔ وہ جنت کی نعمتوں اور وہاں کے سکون کو یاد کر کے افسردہ ہو جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس غم کو کم کرنے کے لیے ان کے دل میں دنیا میں سکون اور صبر کی کیفیت پیدا کی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس آزمائش کو قبول کیا اور زمین پر اپنی زندگی کو اللہ کی رضا کے مطابق گزارنے کی کوشش کی۔ حضرت آدم علیہ السلام کا زمین پر زراعت کی تعلیم دینا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر آنے کے بعد اپنی اولاد کو زراعت اور کھیتی باڑی کی تعلیم دی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں سکھایا کہ زمین سے کس طرح فصلیں اگائی جا سکتی ہیں اور اپنی ضروریات کیسے پوری کی جا سکتی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو زمین سے محنت کے ذریعے روزی کمانے اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا صحیح استعمال کرنے کی تعلیم دی۔ یہ واقعہ دنیا میں محنت اور رزق حلال کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور فرشتوں کی زیارت۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمین پر اترنے کے بعد فرشتے بعض اوقات ان سے ملنے کے لیے آتے تھے۔ فرشتے انہیں اللہ کی ہدایات پہنچاتے اور حضرت آدم علیہ السلام کو تسلی دیتے تھے کہ زمین پر ان کا مقصد اللہ کی عبادت اور انسانیت کی رہنمائی ہے۔ یہ واقعہ ظاہر کرتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے خاص بندے تھے اور اللہ نے انہیں زمین پر بھی اپنی ہدایت کے مطابق زندگی گزارنے کی رہنمائی دی۔ حضرت آدم علیہ السلام کا اللہ کی طرف سے ہدایت پانا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت عطا کی کہ وہ زمین پر کیسے زندگی گزاری اور انسانیت کی رہنمائی کریں۔
अल्लाह ने उन्हें दुनिया के उसूल और कवानीन सिखाए और बताया कि उनकी औलाद के लिए हिदायत का सिलसिला जारी रहेगा। इस वाक़या से मालूम होता है कि अल्लाह हमेशा अपने बंदों की रहनुमाई फरमाता है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का रिज़्क़ की तलाश में मेहनत। ज़मीन पर आने के बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए मेहनत करना पड़ी। उन्होंने ज़राअत और खेती बाड़ी का आगाज़ किया और अपनी औलाद को भी इसका दर्स दिया। ये वाक़या हमें बताता है कि मेहनत इंसानी ज़िंदगी का एक लाज़मी हिस्सा है और अल्लाह ताला ने इंसान को मेहनत के ज़रिए रिज़्क़ अता किया है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का अपनी औलाद में अव्वलीन नबी का इंतखाब। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में सबसे पहले नबी हज़रत शीस अलैहिस्सलाम थे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी वफ़ात से पहले हज़रत शीस अलैहिस्सलाम को नबुव्वत की ज़िम्मेदारी सौंपी और उन्हें हिदायत दी कि वो अपनी कौम को अल्लाह की इबादत और हिदायत की तरफ बुलाएं। ये वाक़या नबुव्वत के सिलसिले का आगाज़ था जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का अपनी औलाद को ज़मीन पर फैलाने का हुक्म। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद को हिदायत दी कि वो ज़मीन पर फैल जाएं और दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में आबाद हों। ये वाक़या इंसानियत की इब्तिदा और दुनिया में फैलाव का सबब बना। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद को हिदायत दी कि वो ज़मीन पर बसें लेकिन हमेशा अल्लाह की इताअत और इबादत करें। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का हिकमत का दर्स। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सिर्फ जिस्मानी इल्म नहीं बल्कि रूहानी और इखलाकी इल्म भी अता किया था। उन्होंने अपनी औलाद को ज़िंदगी के तमाम शुबों में हिकमत सिखाई, जैसे कि इंसाफ, मोहब्बत और एक दूसरे के हुकूक का एहतराम। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद को ये सिखाया कि दुनिया एक इम्तिहान है और असल कामयाबी अल्लाह की रज़ा में है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और मौत की याद दहानी। एक रवायत के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब पहली बार किसी जानवर को मरते देखा तो वो हैरान हुए और अल्लाह ताला से सवाल किया कि ये क्या है। अल्लाह ताला ने उन्हें बताया कि ये मौत है जो तमाम जानदारों पर आनी है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पहली बार मालूम हुआ कि मौत भी ज़िंदगी का हिस्सा है और इंसान को एक दिन वापस अल्लाह के हुजूर जाना है। ये वाक़या इंसान को दुनिया की आर्जी ज़िंदगी और आखिरत की हकीकी ज़िंदगी की याद दहानी कराता है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का इंतकाल। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम एक लंबी उम्र गुजारने के बाद अल्लाह के हुक्म से दुनिया से रुखसत हो गए। उनकी उम्र 930 साल थी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद उनकी औलाद दुनिया में फैलती गई और उनके बाद आने वाले अंबिया किराम ने इंसानियत को दीन की तालीमात पहुँचाई। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा इंसानियत के लिए एक अहम सबक है। यह किस्सा हमें यह सिखाता है कि अल्लाह ताला ने इंसान को इल्म, अक्ल और इख्तियार दिया है, लेकिन शैतान इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है जो हमेशा बहकाने की कोशिश करता है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा हमें ये दर्स देती है कि अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो हमें फ़ौरन अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहिए और तौबा करनी चाहिए। नतीजा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा इंसानियत के आगाज़ और अल्लाह की रहमत की निशानी है। अल्लाह ताला ने इंसान को अपने मखलूक में बेहतरीन मकाम दिया और इसे इल्म और हिकमत अता की। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक, आज़माइश, तौबा और उनकी औलाद के किस्से में बेशुमार हिकमतें पोशीदा हैं। ये किस्सा हमें अल्लाह के करीब रहने, शैतान से बचने और अपनी गलतियों पर नदामत करके तौबा करने का सबक देता है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़रिए अल्लाह ने इंसानों को ये सिखाया कि शैतान की मक्कारियों से बचना और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना ही कामयाबी का रास्ता है।